जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے اس کی کہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت و سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا پربت و سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا وہ سمندری ہمارا وہ پاسبا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا
ಗೌರವಾನ್ವಿತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಕೆಲವೆಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 2 ಶತಮಾನಗಳ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ಇದು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾರರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಶಹೀದ್ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮದನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾರರು. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ 4 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Honorable Chief Guest, respected Ustads and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah al-Khair to everyone. As you know, today we are gathering here to celebrate the 75th Independence Day. First of all, Alhamdulillah, I am proud to be an Indian Muslim. Friends, do you know how we freed from British slavery? Now everywhere there's a sound that Muslims are traitors. They are enemies of India. But if you open the history pages, it will be clear that Muslims have also contributed to the liberation of India. There was a time when everyone used to say about Tipu Sultan Shahid Rahmatullahi alayhi that he sacrificed his life for India. But now some so-called parties and some groups are trying to defame their name and prove them as traitor. Maulana Abul Hasan Ali Nazvi Rahmatullahi alayhi, may Allah have mercy on him. The first person who realized this danger was the brave and zealous ruler of Mysore, Fateh Ali Khan. Tipu Sultan, who realized with his mature vision and extraordinary intelligence that the British would continue to observe each province and state in the same way. And if no organized power comes against them, eventually the whole country will become like them. Therefore, they decided to fight the British and come against them with all their equipment, resources and military preparation. In liberating India, great people like Gandhiji and Vallabhbhai Patel and Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh sacrificed themselves. On the other hand, the great scholars of Madrasa Diniya also sacrificed themselves like Sayyid Ahmad Shahid Rahmatullahi alayhi, Maulana Shah Waliullah Muhaddis Dehlevi Rahmatullahi alayhi, Shah Ismail Shahid Rahmatullahi alayhi. If you still have doubts about Muslims, go look at the Red Fort, whose names are written there most. So please don't divert our colorful India in the name of religion. Just celebrate this Independence Day with joy and brotherhood. At the last, with this Urdu poetry, I will end my speech. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद, जब चमन में लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा. बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा. मुहतरम उलमा इकराम और हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, जब सरजमीन हिंद पर अंग्रेजों के नापाक साए पड़े, बाशिंदगाने हिंद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून पानी से अर्जा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पर नीलाम की जाने लगी, जब इनकी जानें खिलौनों से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अजीज ही में इनका रहना मुश्किल और दोचार कर दिया गया,
اور جب انگریزوں کا خونی اقلیت ہندوستانیوں کو اپنے پنجہ غلامی میں جگڑنے لگا، تب ایسے نازک حالات اور ہولناک ماحول میں جبکہ زبان کھولنا گویا موت کو دعوت دینا، وقت کے سب سے بڑے عالم دین امیر المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف طوفان بلا خیز جس میں کاشنائے فرنگیت خوش و خاشاک کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا، انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی، مسلمان میدان جہاد میں بے خوف و خطر کود پڑے، انگریزوں سے دو بدو اور آمنے سامنے کی ایسی ٹکر لی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، ناچار انگریزوں کو اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑا۔ اس فتوے کے بعد پورے ہندوستان میں عام نفرت پھیلنے لگی اور ہر ہندوستانی کے سینے میں جذبہ آزادی مچلنے لگی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی بہت مشہور اور خوفناک ہے، جس میں انگریزوں نے اپنے ظلم کی انتہا کی، عرصہ مسلمان ہندوستانیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، باوجود اس کے مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا، انگریزی ظلم کے آگے سر سکندری بنے رہے۔ دوستوں، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لاتعداد علماء اکرام شہید کیے گئے۔ اگرچہ غیر مسلمان بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں، مگر یہ سچ نہیں ہے کہ اگر مسلمان خصوصاً علماء اکرام جنگ آزادی میں شریک نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اب تاریخ کو مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور تاریخ کو جھٹلانے والوں کو سچ کا آئینہ دکھائیں، اور ہم اپنے محسن علماء اکرام کی محنتوں اور قربانیوں کو ان کے سامنے بدلاتے رہیں گے۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے مختصر وقت میں ہندوستان میں جو انگریزوں نے ظلم ڈھایا اور ظالمانہ قبضہ جمایا اور کس طرح اس کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً مسلمانوں نے جو پیش قدمی کی، آگے بڑھے، اس کو پیش کیا۔ اس کے بعد میں جتنے نوجوان ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ یہاں بیٹھ جائیں 5 منٹ کے لیے، تاکہ ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں یہ آزادی کیوں منائی جاتی، آخر کیا ہوا، کس سے آزادی ہم کو ملی۔ سب طلبہ ادھر متوجہ ہوں، سیدھے کھڑے ہو جائیں ترتیب سے۔ دیکھو، ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، قرآن پاک کی آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور دوسری آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز۔ جب سے دنیا بنی، کب سے؟ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے نظام چلا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو انصاف پسند،
जो खुद भी सही ढंग से अमन व अमान शांति के साथ रहते हैं और दूसरों को भी कभी तकलीफ नहीं देते। इंसानों में एक तबका हुआ रहा है जो खुद भी अपने आप को भी अमन और शांति से नहीं रखते, अपने आप पर भी जुल्म करते हैं और लोगों पे जुल्म करते हैं, जमीन में रहने वालों पे जुल्म करके अपना कब्जा जमाते हैं। तो अल्लाह का ये निजाम चला है कि अल्लाह ताला कभी इनको जीत देते हैं, कभी इनको हार देते हैं, कभी उनको हार देते हैं, कभी इनको जीत अता करते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को कमजोर करने का निजाम भी अल्लाह ने चलाया है। कभी जालिम की पकड़ करते हैं, उसके ऊपर गलबा देते हैं, उसको निकालते हैं मुल्क से, जमीन से, पाक और साफ करते हैं, फिर अमन और शांति आती है। ऐसा ही हमारा मुल्क भी, हालांकि इस मुल्क में हजारों मजहब की किस्म मानने वाले हैं, हजारों मजाहिब को मानने वाले अलग अलग कौमें इस मुल्क में रहती हैं। शायद कि किसी और मुल्कों में ऐसा नहीं रहता, बहुत कम जाते हैं, लेकिन यहाँ हर मजहब को मानने वाले हजारों लोग, हजारों किस्म की कौमें यहाँ रहती हैं इस मुल्क में, अमन और शांति के साथ रही हैं। तो ऐसे ही हमारे मुल्क में भी अमन के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, मैं बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखो पीछे भी बच्चे खड़े हैं, सीधे खामोश, इधर उधर देखकर हंसना नहीं। मैं आप ही को समझाने के लिए मोटे मोटे अल्फाज में बोल रहा हूँ, लंबी तकरीर नहीं कर रहा, बड़े अंदर, कि हमारे मुल्क में भी सुकून और इत्मीनान के साथ हम सब रह रहे थे। इतने में बाहर से ब्रिटिश कौम आई, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज। कब आई? वो किसी तरह के यहाँ के जो बादशाह किंग थे, उनका जहन बनाया कि हम आपके मुल्क में आएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ बिजनेस करेंगे और आपके मुल्क को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और अच्छा आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की बात कहकर वो यहाँ पे आए और एक कंपनी कायम की, जिसे क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। असल में उनका ये था कि यहाँ किसी तरह वो सिर्फ कमा कर जाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इस मुल्क पे कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करके यहाँ के रहने वाले लोगों को गुलाम बनाना और मुसलमान खुसूसन उनको उनके मजहब से दूर कर देना और उनके मजहब पे चलने ना देना और कुरानी तालीम, दीनी तालीम को लिए आड़ बनना कि वो किसी तरह जितने मदरसे, मसाजिद और ये जो उलमा, इस सारा सिलसिला बंद कर दिया जाए और इनको अपना गुलाम बनाकर रखा जाए। इस इरादे से अंदर से आए थे, लेकिन बाहर से क्या कहा, हम यहाँ पे कंपनी कायम करके इस मुल्क को डेवलप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये कहकर आए। तो इसी को कब आए और सबसे पहले इनके खतरे को, जिस नीयत से बुरी नीयत लेके दिल में आए थे, इस नीयत को सबसे पहले किसने भांपा, किसने समझा कि इनकी असल नीयत क्या है? तो उसको इंशाअल्लाह मुख्तसर अल्फाज में एक किताब में लिखा गया, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, जहन में हमको रखना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने 16वीं सदी ही से आना शुरू कर दिया। कब से आए? 16 ईस्वी में आ गए। मुगल बादशाह का दौर था, आदिल जहांगीर। मुगल बादशाह आदिल जहांगीर को किसी तरह समझा बुझाकर खुश आमद करके तिजारत के लिए बाकायदा इजाजत नामा हासिल कर लिया, इजाजत लेके इस मुल्क में आया। फिर इन अंग्रेजों ने, जो कि बर्तानिया से तिजारत के लिए आए थे, यहाँ हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक बिजनेस कंपनी, तिजारती कंपनी की बुनियाद डाली, फाउंडेशन रखा और तिजारत का माल जमा करने के नाम पर किलों को तामीर करना शुरू कर दिया। क्या बनाए? किले, बड़े बड़े देखे नहीं किले? कहाँ देखे, कौन देखे हैं? उनसे पूछ लो कैसे रहते हैं। और अपनी फौज भी तैयार कर ली। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के इंतजामी कामों में दखल देने लगे। मुल्क हमें बादशाह, यहाँ के बादशाह चलाते थे, उनसे कहने लगे तुमको ऐसा चलाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। और अपनी ऐसी पोजीशन मकाम बना लिया कि उस वक्त के बादशाह को भी इन अंग्रेजों को मुल्क से हटाना मुश्किल और नामुमकिन हो गया। आए थे इस मुल्क में किराएदार बनकर, जैसे कोई आदमी भाड़े को घर लेके आता है ना,
चंद दिन के बाद क्या कहने लगे, नहीं मैं ही इसका मालिक हूं, मेरा घर है, ये दावा करने लगे। इसलिए उनको निकालना मुश्किल हो गया। आखिरकार अंग्रेजों ने मुसलमान बादशाहों नवाबों की बेजा रियायत और सियासी कमजोरी का फायदा उठाकर जुनूब हिंद में, कहां पर जुनूब हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान का जुनूब का हिस्सा कर्नाटक है, केरला है और इसी तरह तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, इसे जुनूब कहते हैं। जुनूबी हिंद में शहर मैसूर और मशरिक में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के नापाक इरादों को महसूस करके इनके नापाक कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे पहले सिराजुद्दौला नवाब मुर्शिदाबाद बंगाल ने 1170 हिजरी 1170 और मुताबिक 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ पिलासी के मैदान में जंग की, इनकी नीयत को ढांकर। जब अंग्रेजों को अपनी हार का यकीन हो गया कि हम जीत नहीं सकेंगे, हार जाएंगे, तो उन्होंने मीर जाफर को अपने साथ लेकर अपना बनाकर मीर जाफर के लड़के मीरान के हाथों सिराजुद्दौला को कत्ल कराया। टीपू सुल्तान के पास किसको पकड़े, मीर सादिक को, और बंगाल में मीर जाफर को, तो सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। इसी तरह नापाक कोशिशें करके अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा, बंगाल वगैरह पर कब्जा कर लिया। और इधर जुनूबी हिंद में इसी 18वीं सदी में अंग्रेजों के गासिबाना कब्जे को खत्म करने के लिए वहां तो सिराजुद्दौला और यहाँ हिंदुस्तान में इधर मैसूर वगैरह में शेर मैसूर मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी पूरी ताकत और जंगी साजो सामान के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया। किसने किया भाई? हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह। अपने वक्त के बादशाहों और नवाबों को आमादा करने की कोशिश की, सबको समझाया कि मेरे साथ आ जाओ, और तुर्की के बादशाह सलीम उस्मानी से भी राब्ता किया और करीब था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर किया जाए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नवाबों को माल और हुकूमत वगैरह का लालच देकर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ गद्दारी करवाकर आखिरकार 1799 ईस्वी को श्रीरंगापट्टन मुताबिक 4 में 1799 को श्रीरंगापट्टन की जंग में आपको शहीद कर दिया वहां में। अब जब अंग्रेजों ने दिल्ली वगैरह पर 1803 ईस्वी में अपना कब्जा जमा लिया दिल्ली में, तो हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह के बड़े साहिबजादे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जिहाद के तो क्या भाई, जालिम को रोको, भाई जुल्म नहीं करना, इसका वो माना। उलमा इस्लाम की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। इसी तरह सिलसिलावार एके बाद दीगरे मुस्लिम उलमा अकाबिर ने अपने अपने वक्त में जब भी अंग्रेज सरजमीन हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करता रहा, अपनी जड़ें मजबूत करना चाहा, तो उसकी जड़ों को खोखली बनाने की मेहनत और जद्दोजहद करते रहे। कभी कलम से, कभी लिखकर, कभी तलवार से जंग करके, यहाँ तक कि हजारों उलमा ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दी हिंदुस्तान को उनसे यहाँ से निकालने के लिए। क्यों निकाला अंग्रेजों को? वो जालिम थे। क्या थे वो? जालिम। उसे मुसलमान नहीं, सारे मुल्क में रहने वाले सब किस्म के लोगों पर जुल्म करके उनको अपना गुलाम और नौकर बनाना चाहते थे। लेकिन जान दे दी, लेकिन कभी भी अंग्रेजों जैसे दरिंदा सिफत जालिमों के जुल्म और उनकी दर्दनाक सजाओं से खौफ खाकर, मुतासिर होकर, घबरा कर या किसी हुकूमत के ओहदे और माल की लालच में आकर अंग्रेजों की मुखालफत से नहीं हटे। भाई तुम्हें मैं एमएलए बना देता हूँ, सीएम बना देता हूँ, पीएम बना देता हूँ, कोई आलिम, चलो इस लालच में आकर छोड़ देंगे, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया।
बल्कि सबसे बेबाक और निडर होकर, बेखौफ होकर सब कौमों से पहले बुलंद आवाज में हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया, ये सबसे पहले आवाज का नारा लगाया। इस नारे में अल्लाह ने ऐसी बेमिसाल तासीर यानी असर पैदा कर दिया कि वो नारा मुस्लिम अवाम और दीगर तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी का जज्बे का शोला बनकर भड़का। हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि अंग्रेजों को मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। जब हजारों उलमा जाने दी और बेखौफ होकर खड़े हो गए, कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, तो अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा जाए। लिहाजा 1942 में जब अंग्रेजों ने महसूस कर लिया, अब उनको मालूम हो गया कि अब हिंदुस्तान में आजादी का जज्बा क्या हो चुका है, आम हो चुका है। हर आदमी बोल रहा है निकलो, छोड़ो छोड़ो। पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, इस भाड़े घर में, इस जमे यहाँ से छोड़ो। और हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाकर रखना मुश्किल है। अभी नो गुलाम बनने वाले नहीं हैं। चुनाचे वजीर आजम बरतानिया मिस्टर इटली ने एक वजारती मिशन हिंदुस्तान के सियासी रहनुमा और कायदीन से गुफ्तगू के लिए एक जमात भेजी, एक ग्रुप को बनाकर भेजा। और फिर इस वफ्द की सिफारिश पर, रेकमेंड पर 6 शव्वाल 1360 पर 5 हिजरी मुताबिक 1940 पर 6 ईस्वी 1946 को उबुई हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट का क़याम अमल में आया, जिसके तमाम मेंबर्स अराकीन हिंदुस्तानी थे। क्या थे? कौन थे? कमेटी के पूरे हिंदुस्तान। जवाहरलाल नेहरू हुकूमत के वजीर आजम बनाए गए। सरदार पटेल जी को वजीर दाखिला और नवाबजादा लियाकत अली खान को वजीर मालियत बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दस्तूर साजी असेंबली का सदर मुंतखब किया गया। कानून बनाओ, इसके लिए सदर बनाया। आखिर 90 साल, कितने 90 साल का मतलब 90 साल 1850 पर 7 से 1857 से 1940 पर 7 1947 तक अगर सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद वगैरह की जद्दोजहद, उनकी कोशिशों को भी मिला लिया जाए तो तकरीबन 200 साल की लंबी तवील कोशिशों के बाद और कुर्बानियों के बाद 14-15 अगस्त 27-28 रमजानुल मुबारक 1360 पर 6 हिजरी मुताबिक 1940 पर 7 1947 की दरमियानी रात में ठीक 12 बजे हिंदुस्तान के उफुक पर गत आसमान किनारे पर आजादी का सूरज, रात में किसका सूरज निकल कर आया? आजादी के, आजाद हुआ 12 बजे। और हिंदुस्तान रेडियो से बाकायदा आजादी का ऐलान किया गया। इसलिए रात में 12 बजे खुशी मनाते नहीं, तो इस वक्त हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त को आजाद हुआ। और अब आजादी की हर तकरीब में अल्लामा इकबाल का यह तराना बड़े शौक से पढ़ा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता। ये पिछले सफात के अंदर जो जितनी तारीख हम पढ़े अभी, आपको मालूम हो गया होगा कि हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी का मुतालबा सबसे पहले हम मुसलमानों ने किया है। बच्चों को समझ में आ रहा? ये जहन में रख गया है। और हमारे उलमाए किराम ने महज मुल्क की आजादी के खातिर जंगें लड़ी, ना वो हुकूमत की तालीब थे, भाई हमें हुकूमत नहीं चाहिए, इनको निकाला, और न किसी मालो दौलत के। इसी वजह से हुक्मरानों की फहरिस्त में न उनका नाम मिलता नहीं। क्या भाई हमारे मिनिस्टर, हमारे मुसलमान का भी कोई मिनिस्टर नहीं, कोई बड़े बने नहीं गए, तो उनका नियत इरादा मिनिस्टर बनने का नहीं था, बल्कि नापाक कीड़ों को पहले क्या करना था? यहाँ से पाक और साफ करके निकालना था। वहां कहीं नाम नहीं मिलता, वो किसी कुर्सी पर चेयर पर नजर नहीं आते, बल्कि उनका नाम मुजाहिदीन आजादी, इसके लिए लड़ने वाले और खादिमीन, कौम मिल्लत, कौम की खिदमत करने वालों की फहरिस्त में मिलता है। आजादी हिंद के लिए पेश आगे रहने वाले चंद मुजाहिदीन आजादी के नाम नीचे लिखे जा रहे हैं,
जिनको पढ़ा जाए ताकि उनकी रूह खुश हो जाए, हमें भी मालूम हो कि कौन कौन है। चंद लोग जैसे सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद के नवाब, मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेर मसूर कर्नाटक, मुजाहिद आज़ादी हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहिबजादे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, इनके बेटे हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह बहादुर शाह जफर, मुजाहिद आज़ादी हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बानी जिससे शुरू किए, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही सरपरस्त दारुल देवबंद, इसकी निगरानी करने वाले, इसी तरह हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद थानवी, हज़रत मौलाना मजहर नानोती, हज़रत हाफिज जामिन शहीद मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी और मुफ्ती सदरुद्दीन आजूदा, और इसी तरह मुजाहिद इस्लाम मुफ्ती इनायत अहमद काकोई, मुजाहिद इस्लाम मौलाना मोहम्मद जाफर थाने सही, मुजाहिद इस्लाम व आज़ादी मौलाना याहिया अली अजीम आबादी, मौलाना अहमदुल्लाह अजीम आबादी, मौलाना अब्दुल रहीम साहब अजीम आबादी, मौलाना रहमतुल्लाह साहब केगानवी, और मौलाना मुजाहिद आज़ादी मिर्जा आशू अली बेग दहलवी, मौलाना नवाब मुस्तफ़ा खान साहब शरीफ्ता, और मौलाना इमाम बख्श साहबाई, मौलाना रजीउल्लाह बदायूनी, मुजाहिद आज़ादी हज़रत शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दारुल उलूम देवबंद, मुजाहिद इस्लाम आज़ादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अब आखिर के इतने सारे नाम हैं, इसमें सबको मालूम नहीं, हज़रत टीपू सुल्तान का तो हम नाम सुने। आखिरी में जो असल में आखिरी में जो अनथक कोशिशें की हैं उसमें सबको नाम याद रखना चाहिए। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हों किसके उस्ताद हैं? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, तालीम इस्लाम लिखे नहीं, बहुत बड़े मुफ्ती मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन, जो अरशद मदनी साहब दामत बरकातुम, जिनका नाम सुनते हैं जमीयतुल उलमा के, बड़े नाम सुने किसका तकब तो भी, इनके वालिद, इन्होंने सभी इसके लिए इस मुल्क के लिए लड़े हैं, अपना पूरी जिंदगी इसके लिए लगाए हैं, तब उन अंग्रेजों को निकाले। तो उस वक्त क्या हुआ कि हम अब सुकून के साथ इत्मीनान के साथ इस मुल्क में हम ही नहीं बल्कि जितने बरादरान वतन हैं अपने अपने मजहब गाहों में जाके अपनी अंदाज से इबादत करते हैं, सुकून के साथ भाई मोहब्बत के साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं, वरना उनके गुलाम बन जाते। उन्हें नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ना, नको पढ़ोगे तो नहीं पढ़ना, मस्जिद बनोगे तो बनाना, नहीं बनोगे तो नहीं बनाना, है तो मस्जिद बंद कर दोगे तो बंद कर देना, ऐसा मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जान की कुर्बानी दी, आज हम इत्मीनान के साथ सुकून के साथ मोहब्बत और प्यार मोहब्बत भाईचारगी के साथ हम यहाँ पे रहते हैं। अपने दीन पे हर कौम वाले अपने अपने मजहब पे चलने की आज़ादी है और ये मुल्क सेकुलर है, यहाँ पे सबको दस्तूर बनाने के बाद इजाज़त दी गई कि हर आदमी अपने अपने मजहब पे अमल कर सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तू की नमाज पढ़ रहा है, दूसरा कोई मुसलमान किसी को नहीं, तू की पूजा पाठ कर रहा है, रोक नहीं सकता। और जो इस वक्त भी बाज़ लोग बोल रहे कि तुम्हें ये नहीं देना, वो नहीं देना, नमाज नहीं पढ़ना, ये सब कोशिशें करना, इन लोग असल में सबके दुश्मन है, सब मुसलमानों के दुश्मन नहीं, इस मुल्क के भी दुश्मन हैं और इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान के, हर कौम के मानने वाले के दुश्मन हैं। बात समझ में आई? अल्लाह अमल के तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को अल्लाह ताला अमन और शांति सुकून के साथ रखे, जालिमों के तसल्लुत और कब्जे से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।